پی ٹی آئی نے جو رد عمل دیا اس پر ہم آتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی تھی، اس میں جو سیاسی طور پر سوال اٹھایا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، اس کا رد عمل ہمیں نظر آیا۔ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا وجہ ہے حکومت یا حکومتی وزراء کی طرف سے اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر نہیں کیا گیا، کیونکہ دوسری طرف سیاسی جماعت کی طرف سے یہ بیانات دیے گئے تھے اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر اس پر رسپونڈ کرنا پڑا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی، ایک تو سیاسی بیان جو ہے وہ ایک لامحدود لائسنس نہیں ہے جھوٹ اور گند پھیلانے کا، جو کہ ہماری سیاست میں عام طور پہ یہ رواج ہے کہ سیاسی بیان کہہ کر آپ بانی چیئرمین تو آپ کو معلوم ہے 35 پنکچر کو بھی جس کا انہوں نے بہت پرچار کیا، بعد میں کہا جی سیاسی بیان تھا، وہ ہر قسم کا الزام لگا دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں سیاسی بیان تھا۔ لیکن ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو ٹویٹ تھا بانی چیئرمین کا، ان کا براہ راست ظاہر ان کا ہینڈل ہے، تو ایک جوہری طاقت میں جو جوہری ڈیٹرنٹ کا پہلا امین ہے حکومت، اس کی الٹیمیٹ امین ہے فیلڈ مارشل جو ہیں، اگر آپ ان کی ذہنی صحت کے بارے میں گفتگو کریں گے تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ بات تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور ان کی جماعت کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ اس ایسے نازک معاملات کے اوپر صرف اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس کے لیے اس قسم کا گند پھینکیں گے، پھر اس کا جواب آئے گا اور بھی اس کے نیشنل سیکیورٹی امپلیکیشنز ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملہ کر چکی ہے، جو ریڈیو پاکستان پشاور پر جلا چکی ہے، جن کا ایک پورا نیٹ ورک ہے بیرون ملک، جو بیٹھ کر پاکستان کی ریاست، افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل کے خلاف مستقل ایک گند اور جھوٹ پھیلا رہا ہے، جو آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 12 لکھ چکے ہیں کہ جناب پاکستان کی سپورٹ نہ کی جائے، جو اس وقت جو ہے ایک جب حالت جنگ میں ہے اور اس حالت جنگ میں دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کی ترویج کرتے ہیں، جو بار بار پاکستان کے جو افواج ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک ایسی جماعت ہمارے سامنے موجود ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سیاسی میدان سے نکال کر ریاست اور افواج پاکستان مخالف سپیس میں قید کر دیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ خرم صاحب، میرا سوال کیونکہ میں دوبارہ دروازہ کھلا ہے، جو بیان انہوں نے دیا وہ واقعی بہت نامناسب تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے جو اصطلاح استعمال کی گئی، دوسری طرف سے جو جواب آیا وہاں پر بھی اسی طرح کی ذہنی صحت کے حوالے سے ہی بات کی گئی، جو کہ اٹ سیلف دونوں طرف سے استعمال ہونا اس لفظ کا بہت انسینسٹیو بات ہے، کیونکہ لوگ جینوئنلی ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مذاق اڑانے کے مترادف نظر آیا ہمیں دونوں طرف سے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیر دفاع کو اس کا رسپونڈ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، یا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا آنا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا جو حلف ہے وہ بہت محدود کرتا ہے کہ وہ کن ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور کس پہ نہیں، لیکن ان کو اس پہ سیاستدان کی جواب پر ویسے ہی رسپونڈ کرنا پڑا، ہو بہو انہی الفاظ میں۔ جی بہتر تو ہوتا، لیکن یہاں جبکہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ جو مکالمہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پاکستان کے عوام کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بارہا ایک دفعہ نہیں کتنی درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، تو میں پھر کہوں گا کہ ایک ایسا سیاسی جتھا ہمارے سامنے ہے جس نے اپنے آپ کو سیاسی سپیس سے نکال کر ریاست مخالف پنجرے میں خود قید کر لیا ہے، حالانکہ اس پنجرے کا دروازہ کھلا ہے، وہ چاہے تو اس سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ اس پر مستقل جو ہے، میں پھر کہوں گا انہوں نے آگے لگائیں، انہوں نے بیرون ملک سے حملے کیے، معاشی جو ہے طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اب دہشت گردوں کے خلاف وہ پاکستان کو، میری نظر میں جب وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تو پاکستان کی موقف کو کمزور کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ مستقل اس پر عمل پیرا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوئے۔ بہتر ہوتا، آئین یہی کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو
वजारत है उसी की तरफ से जवाब आना चाहिए। पर बाद में आपको मालूम है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बाद में दिफा हैं उन्होंने खुरम बड़ी साहब बात आज भी, हाँ आज तो विफाकी खुलकर वज़रा बात सूबाई की। वज़रा ने बात की, लेकिन ये कुछ दो तरह की राय इसके ऊपर पाई जाती है। खुरम साहब आप बतौर नून लीग के सीनियर रहनुमा इसको अगर क्लैरिफाई करें, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके वज़रा फासला इख्तियार करते हैं, बात हद से आगे निकली, खुद फौजी तर्जुमान ने रिस्पॉन्ड कर दिया तो आज वो आगे इस बयान को डिफेंड करने के लिए, और कुछ लोग ये राय रखते हैं कि आप लोग सलाहियत नहीं रखते PTI को काउंटर करने की। इन दोनों में से क्या कोई एक वजह है? जी देखिए, सलाहियत के बारे में तो गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जिस किस्म का बैरून मुल्क का नेटवर्क है, देखिए ये एक पाकिस्तान की जो हाकमियत और सियासत है उसमें एक नया अंसर है कि एक बैरून मुल्क पूरा गिरोह है जो रियासत के ऊपर हमलावर है और उस वक्त रियासत की दस्तरस से, कानूनी दस्तरस से बाहर है। अब आपने देखा कि पहली दफा जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो उन्होंने कदम उठाया और वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के पास गए, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि ये दो लोग, उन्होंने जो स्पेसिफिक नाम लेकर कहा, जो लोग मुस्तकिल एक हफ्ते में 7 दिन जो है 7 दफा गलत गुफ्तगू, झूठ गुफ्तगू और पाकिस्तान की रियासत में और पाकिस्तान की अफवाज के बारे में झूठ फैलाते हैं, तो लिहाजा उनको पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये जो है वो हमें ये लोग एक्स्ट्राडिशन होनी चाहिए। तो ये जो अमल है इसका आगाज हुआ है। ये जरूर है कि यहाँ हमें क्लैरिटी से, अब जिस क्लैरिटी की जरूरत है, मेरी ये तवक्को है कि आने वाले जो कौमी असम्बली का सेशन है उसमें वज़ीर आज़म भी और वज़रा भी इस पर खुलकर बात करेंगे कि हम किस स्टेज पर आए हैं कि मामला सियासी मुखालफत और सियासी इजहार से आगे निकला है एक जमात का, और अब वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को हिट कर रहा है। ठीक, अब कल खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने जलसा किया है और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इस वक्त उसको मुस्तरद किया है। CM खैबर पख्तूनख्वा का ये मौक़िफ़ था कि 21 साल से यहाँ पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई है, तो पॉलिसी को बदला जाए और मुंतखब नुमाइंदे बनाएं पॉलिसी। क्या इसके ऊपर वफाक अब कंसल्ट करेगी KP को? ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उन्होंने एक जिरगा भी मुनक़िद किया था जिसमें अपोजिशन, आपकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भी शामिल थे और अपना मौक़िफ़ इस पर पेश किया गया था। जी यही तो अलमिया है कि जिस स्ट्रैटेजी की वो बात करते हैं, जिसके तहत उन्होंने एक जरगा भी किया, इस वक्त 12 अजला में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिट मौजूद नहीं है। उनके तमाम जो प्रोविंशियल इदारे हैं वो पसपा हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो दूसरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहां इस वक्त दहशतगर्दों का राज है। तो हमें ये बताएं कि क्या इस तरह के जरगों से, चले 12 नहीं, एक नहीं, कोई आधा जिला ही दहशतगर्दों के चुंगल से आजाद करा दें, फिर हमको संजीदगी से लेंगे और उनसे कहेंगे कि ये दुरुस्त तरीका है। लेकिन अगर सिर्फ आप रियासत की जो पॉलिसी है दहशतगर्दों से लड़ने की, जिसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई इबाम नहीं है, तो जब आप रियासत की पॉलिसी को अंडरमाइन करेंगे, आप उसको नीचे से उसकी जड़ें काटेंगे और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपीजमेंट, उर्दू में बुज़दिलाना मुसालियत का जो ढोल है वो बजाते जाएंगे, तो फिर पाकिस्तानियों की जिंदगियां जो हम बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन की खुद मुख्तारी वापस लेना चाहते हैं, उस पर रुकावट आ रही है। ये फिर कहूंगा कि यहाँ फिर दोबारा एक ऐसा है कि ये सिर्फ सियासी इजहारिया नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का हिट हो रही है। तो उन्होंने ये फैसला करना है कि अगर वो उस रियासत मुखालिफ और फौज मुखालिफ पिंजरे से अपने आप को आजाद करें, जिस पिंजरे का दरवाजा खुला है, और बाहर आकर सियासत पर बात करना शुरू करें, जिसमें पाकिस्तान के अवाम की सेहत है, अमन व अमान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान में नया रोजगार पैदा करना है और दहशतगर्दी से लड़ना है। अगर उस स्पेस में आकर पॉलिसी की गुफ्तगू करेंगे तो फिर मुकालमा भी होगा, वह बात आगे भी चलेगी और जिस बंद गली में सब दाखिल हो गए उससे भी वो बाहर आ जाएगी। मुकालबे की गुंजाइश तो हमें ख़त्म तभी होती हुई नजर आई जब ये आउटराइटली कह दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या PTI दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, उनकी सिंपथाइज़र है। सो खुरम साहब, उसके बाद फिर एक सूबे की हुकूमत है, वहाँ पर इलेक्टेड हुकूमत है, क्या गुंजाइश रह जाती है कि वो बातचीत करें या फिर उनको कोई सीरियस दावत दी जाए? हमें वो तो नहीं नजर आता हुकूमत की तरफ से। देखिए, जिस एहतराम का वो मुतालबा करते हैं कि उनकी सूबाई हुकूमत है, वो एहतराम फिर वो वफाक को और दूसरी हुकूमतों को देने के लिए क्यों तैयार?
मुस्तकिल हमलावर हैं। तो अगर उनका ये ख्याल है और उनका मुतालबा है कि उनका एहतराम किया जाए बतौर एक मुंतखब हुकूमत, तो फिर उनको दूसरी मुंतखब हुकूमतों का एहतराम भी करना होगा। अगर आप सारा वक्त यही कहते रहे कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, और DGISPR ने, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने तो कोई गाली नहीं दी थी, लेकिन कल खुलकर गालियां दी गई। अब अगर पंजाब के लोग खड़े हो जाएं और कहें कि देखें जी, ये तो पूरे पंजाब को गाली दी गई, ये तो पंजाबियों को गाली दी गई, हम तो उसके खिलाफ है, फिर मामला और खराब होगा। लेकिन आपने देखा किस तरह खुलकर गालियां दी गई, अब उसकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तो हर रोज उनके पास मौका आता है कि वो जमहूरी और सियासी तर्ज अमल का इंतखाब करे, लेकिन हर रोज वो मुतशद्दिद जबान और मुतशद्दिद रवैयों का इजहार करके ये मामला जो है उसको खराब कर देते हैं। तो लिहाजा यहाँ जो इश्यूज हैं, इशू आई थिंक सबसे अहम दहशतगर्दी से लड़ना है, और इसीलिए ये गुफ्तगू होती है कि भाई उस सूबे में जहां अगर एक हुकूमत दहशतगर्दों से मुसालियत करना चाहती है, लड़ना नहीं चाहती, वहां अगर हमने दहशतगर्दी से लड़ना है तो कैसे लड़ना है, और ये सवाल जो है इसके ऊपर अब मजीद बहस भी होनी है, और उसके ऊपर जो अगर आइन में गुंजाइश है कुछ, तो उसको भी इस्तेमाल करना होगा। फिर इसी तनाजुर में गवर्नर राज की बात हो रही थी। कल इस जलसे में PTI की तरफ से कहा गया कि अगर गवर्नर राज लगाया तो हम फिर गवर्नर हाउस का रुख करेंगे। खुर्रम साहब, अभी भी ऑन कार्ड्स है गवर्नर रूल खैबर पख्तूनख्वा में, या फिर इस धमकी को आप भी सीरियस लेते हैं जो उनकी तरफ से दी गई कि इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, आप खुद किधर जाएंगे वो कहते हैं अगर गवर्नर राज लगाएंगे? जी, हम उनकी धमकी को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ये उनका काम, देखिए उनकी इंस्टिंक्ट, जिसको उर्दू में जबिल्लत कहते हैं, वो धमकी है, वो भड़के हैं, वो तशद्दुद है। तो उसके तहत तो रियासत को चलाया नहीं जा सकता, उसको साइड पर रखें। अगर जैसा मैंने कहा, ये हमारी ऑलवेज प्रेफरेंस ये है, तरजीह ये है कि इसी हुकूमत के जरिए हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अगर ये हुकूमत जो है रुकावट बनती है, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कोई फैसला कुन ऑपरेशन प्लान होता है, तो फिर जो हुकूमत है वो भी मुंतखब हुकूमतें हैं, उसके बारे में ये खुद भी गए, लेकिन इनकी गुफ्तगू के ऊपर तो रियासत की पॉलिसी नहीं बन सकती ना। इनको जो जिम्मेदारी वोटों के साथ मिली है वो खैबर पख्तूनख्वा में 13वां साल है। अगर ये मुकम्मल तौर पर वहाँ गवर्नेंस डिलीवर करने में और वहां के रहने वाले 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर करने में नाकाम है, उसका जवाब उन्होंने देना है। उनको जो वोट मिले हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर हमें अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और उसको जो हिफाजत करनी है, उनको ये अंदाजा हो जाना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि हम लामहदूद वक्त तक ये नहीं हो सकता कि एक दिन 12 शहीदों की लाशें उठाएं, फिर 4 की उठाएं, फिर किस दिन AC को कत्ल कर दिया जाए, किस दिन 12 कैडेट कॉलेज पर हमला हो जाए, और हम ये तमाशा देखते रहें। तो लिहाजा उनको भी संजीदगी से इस पर सोचना है कि बजाय ये कि इस पर फोकस किया जाए कि जी गवर्नर राज होगा या नहीं होगा, अगर राज होगा तो राज रहेगा, जो फोकस इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान में रहने वाले जो KP में मेरे भाई और बहनें रहते हैं, उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा या नहीं होगा, ये सवाल है, गवर्नर राज होना ना होना के सवाल नहीं। अब आपकी जो जमात है वो सियासी तौर पे क्या सोच रही है? इस हवाले से डॉन में खबर शाया हुई जिसमें कहा गया है कि जाती उम्रा में शरीफ खानदान की एक बैठक हुई जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि PTI अपने बानी की जो आजकल नई गुफ्तगू है, जिसका ये रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, क्या आइंदा दिनों में उससे दूरी इख्तियार करेगी, उस बयानिए का बोझ न उठाते हुए, या फिर अपनी सपोर्ट जारी रखेगी? क्या आप लोगों की अपनी असेसमेंट है कि आइंदा दिनों में माइनस इमरान की जो बातें अक्सर कयास आराइयों की शक्ल में होती हैं PTI से, इस तरफ मामला जा रहे हैं PTI के लिए? नहीं, हम तो किसी दूसरी जमात, बतौर जमात किसी दूसरी जमात के अंदरूनी मामलात में जो है किसी भी तरह इंटरवीन नहीं करेंगे। हमारी पॉलिसी देखिए, जो थे स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने वाजे कर दी, वो पिछले 3 हफ्ते में गालिबन 3 दफा उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है। तो हमारी पेशकश तो हमेशा है कि वो उस रियासत मुखालिफ पिंजरे से बाहर आकर सियासी स्पेस में आकर हमसे बात करें, लेकिन अगर कौमी मुकालमा करना है तो वो कौमी इश्यूज पर होगा, जाती इक़्तिदार के इश्यूज पर नहीं। आज बैरिस्टर गौर साहब ने, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, और उन्होंने बड़े सॉफ्ट एक लहजा अपनाते हुए कहा है कि टेंशन और दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है, एक अच्छी सोच की ज़रूरत है। कमो बेश खुर्रम साहब वैसी बातें जो आप आज कह रहे हैं,
تو اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک کردار خاص طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہو. سو اس کی کوئی گنجائش ہے یا پھر جس طرح کہ طلال چودھری صاحب نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ اب کسی قسم کے مذاکرات کی کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایز اے پولیٹیشین آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ابھی بھی بیچ میں ہے یا اس کو ختم سمجھا جائے جو حکومتی وزیر کا بیان ہے اس کے بعد؟ جی پارلیمان میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. وہ جگہ ہے، پاکستان کے منتخب ایوان ہے، وہ ہمیشہ سپیس ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر جیسے جو زیادہ متین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پی ٹی آئی ان کی ٹانگیں کاٹ کر ان کو پھینک دیتی ہے باہر، کیونکہ وہاں تو سنجیدہ گفتگو کی اور پالیسی ریلیٹڈ گفتگو کی ہمیں گنجائش نظر نہیں آ رہی. اسی لیے کچھ پیسمزم ہے کہ وہاں تو صرف ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑکوں کی اور دھمکیوں کی اور متشدد گفتگو جو کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے بانی چیئرمین کی طرف سے. جو بھی سیریس لوگ ہیں ان سب کو ابھی تک تو ریکارڈ یہی کہتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.